Good morning, everyone. So today we are going to see about one of the most important topic in psychology, one of the most important school in psychology, that is Gestalt psychology. So far we have seen about the influence of ancient Greek philosophers in the field of psychology. We have seen about the school of structuralism, functionalism, behaviorism. Okay, so in the same way, the next important school is the Gestalt psychology. Okay, now this particular school, Gestalt psychology, was actually founded in Germany, and it was founded by this particular individual. This name is very famous, Max Wertheimer. And then this school later on expanded by another two individuals, Wolfgang Kohler and Kurt Kofka. Okay, so these two were actually the student of Max Wertheimer, and then they later on taken the concept of this particular school and then derived other concept also with the help of this particular phenomena which was given by Max Wertheimer, जो अभी हम देखेंगे. Okay, so if we talk about that, what is the central theme of this particular school? ये कहना क्या चाहता है? So if you see the word Gestalt, it has no literal meaning in English language, but it is considered synonymous with the word of like form, with the word of like shape, configuration. So it talks about, this particular school talks about the form, shape, configuration. Okay, so this school focuses upon that how can we study all the elements in a holistic manner. Okay, so whole is important for them. Whole is important for them. Okay, so how we are reading all the things, how we are reading all the elements in a holistic manner, in a complete shape, in a configured manner, okay, in a fixed form. This is important for them. So far we have seen that elementalism, break it down. So they are not focusing upon the breaking it down. They are focusing upon reading it in a holistic manner. Okay, so this is the central theme of this particular school. And this school, you will find the application of this school in various chapters of paper 1 also, in paper 2 also. Initially, this particular school focuses upon the concept of perception only. Okay, so it has given a lot of perception, which you will read in sensation, attention, perception chapter also. But later on, with the help of Kohler and Kofka, concept related to this particular school was also studied in the field of learning, memory, thinking, and problem solving. Okay, so if you remember that in learning, there is a very famous insight learning is there. Okay, the famous chimpanzee experiment, which was done by Kohler. Okay, so insight learning is given on the concept of Gestalt psychology. In the same way, in thinking and problem solving, we learn about mental set, reproductive thinking. Okay, so that is also based on the principle of Gestalt psychology. Memory also, we will see about this. Okay, so this is the central theme of this particular school. Now, every time we also try to focus upon that what are the antecedent forces behind the rise of every school. Okay, what are the people who actually inspire this particular Gestalt psychology? Now we will see about a glimpse about those particular individuals. So there are 3 or 4 important names which we will study here. So these are the people who actually inspire the school of Gestalt psychology. Okay, so they are the antecedent forces also. The first one is Immanuel Kant. Now if you see, we read concept related to Immanuel Kant when we studied about the influence of Greek philosophers in the field of psychology. We read some concept related to him. Okay, so he has given 2 important concepts which actually inspire Gestalt psychology. The first one is to talk about unity of perception. Okay, unity of perception. According to this unity of perception, Immanuel Kant is saying that whenever we are perceiving something, we should perceive it in a united manner. Whenever we are reading any consciousness, then read the consciousness in a united manner. Okay, not in an elemental manner. Okay, not in element form, but in a united form. And this is what? This is the concept, holistic concept जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, वो भी तो ये बात करता है. Holistic, united, आपको पूरा united करके पढ़ना है. Okay, so this unity of perception inspire Gestalt psychology, and then they have given their
होल साइकोलॉजी, होलिस्टिक मेथड उन्होंने दिया, तो यहां से इन्होंने ये इंस्पिरेशन ली गेस्टाल्ट वालों ने. इन द सेम वे इमैनुअल कांट हैज आल्सो गिवन वन मोर कंसेप्ट, नेटिविज्म. इन्होंने नेटिविज्म के बारे में बात की थी. So what is nativism? Nativism was saying that it is not required that we learn everything with the help of our experiences. Okay, learning is innate. Okay, it is native. ये आपकी नेचर में भी होती है. In the same way, Gestalt psychology is also saying that there are various things which we perceive and which are innate in nature. Okay, so for example, in perception chapter, you will read about two theories: top-down perception, bottom-up perception. Okay, so they also focus upon this debate. Bottom-up perception talks about that there are certain elements which is innate in nature. Okay, for example, relative size, relative brightness. Okay, whatever we are perceiving with the help of our eyes. Okay, so these are innate in nature. Okay, they are native. Okay, so this particular concept also inspire the field of Gestalt psychology. The second important name is Wilhelm Wundt and John Mill. So again, in Wilhelm Wundt concept, we have seen about one important concept, doctrine of creative synthesis, if you remember. This doctrine of creative synthesis is saying that whenever two elements, A or two elements, another element, and it is forming a different one, a new one, C. So the characteristics of this particular C would be different of these individuals. So A will have different characteristics, B will have different characteristics. Now C will itself has different characteristics. Okay, so the complete which is coming to us, the characteristics of the complete one is not equal to the characteristics of A and B. Okay, the same concept later on modified by Gestalt psychology. They also said the same thing, that whole, when we are perceiving something in a holistic manner, then that whole is not equal to sum of its part. वो जो whole होता है, it is not equal to sum of its part. Okay, for example, you are learning how to sing a song. Okay, so you are learning different notes, and then you prepare a song. Okay, so let's say you learn note A, A1, A2, A3, and then finally you learn a song. Now definitely the characteristics of this particular song would be different from the individual characteristics of A1, A2 and A3. So that means we can say the whole is not equal to sum of its part. Okay, so this is the doctrine of creative synthesis, and this then inspire the school of Gestalt. Okay, and then they have given the concept of part O psychology. Okay, the next important name is Ernst Mach. So you can say here also, Gestalt psychology formed partially as a response to the structuralism of Wilhelm Wundt, who proposed that perception was a function of sensation and focused on breaking down mental element and experience to the smallest element. Gestalt psychology postulates that the whole is different. ठीक है, ये जो कोट था, the whole is different, greater than the sum of its part. ठीक है, अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ये भी आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में. आप बस ये कोड देख लीजिए अभी, द होल इज डिफरेंट ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट. तो ये जो क्रिएटिव सिंथेसिस वाली हाइपोथेसिस थी, ये भी तो यही बात बोलती थी. ओके, इट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. ओके, द नेक्स्ट वन इज अर्नस्ट मैच. इन्होंने भी अपने कुछ कंसेप्ट दिए थे. इन्होंने दो कंसेप्ट बताए थे जिनकी वजह से परसेप्शन में काफी कुछ पढ़ा जाता है इनके कंसेप्ट को. इन्होंने एक तो बताया था स्पेस फॉर्म के बारे में, sensation of space form and sensation of time form. Sensation of space form and sensation of time form. ठीक है. Now what is space form? Space form में ये बोलते थे कि जब भी हम किसी स्पेस को सेंस करते हैं, परसीव करते हैं, तो हम वो होलिस्टिक मैनर से करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारी अलग अलग चीजें उसको परसीव कर दी हैं. There are a lot of element in our brain which is working when you are perceiving any space. Okay, so for example, I am going to see any house or any room. So whenever I'm perceiving the three-dimensional space of the room, then my hand movement is also working, my body movement is also working.
Okay, my eyes are also working, my brain is also working, so all these elements are working together, and because of these all elements working together, I am able to perceive a space in 3 dimensional manner. ओके तो ऐसा हम नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारा ब्रेन कुछ और देख रहा है फिर हमने उसको पढ़ा, हमारा बॉडी मूवमेंट कुछ और कर रहा है तो हमने उसको पढ़ा, हमने हॉलिस्टिक तरीके से उस स्पेस को समझने की कोशिश की। ठीक है, तो जब भी स्पेस फॉर्म को देखा जाता है तो आप हॉलिस्टिक तरीके से देखते हो, और यही तो बात कौन बोलते हैं आज के टाइम पर, गेस्टाल्ट वाले बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया, आप ये समझना कि ये पहले के लोग हैं, ये इनिशियल लोग हैं, ये फिलोसफर्स हैं, तो उन्होंने ऐसी बातें बोल दी थी और इन्हीं को ही फिर गेस्टाल्ट वालों ने पढ़ा जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अर्नेस्ट मार्च ने सेकंड बात क्या बोली, टाइम फॉर्म, कि टाइम को भी ना हम हॉलिस्टिक तरीके से देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, अब आधा घंटा चला गया, तो आधा घंटा चला गया आपका वेट करते करते, तो उस आधे घंटा जो आपका वेस्ट हुआ है आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके, आप वो आधा घंटा आपका कैसा निकल रहा है, आप सोचना, आधा घंटा सिर्फ ऐसा नहीं निकलेगा कि आप घड़ी में कंटिन्यूस देखते रहोगे। ठीक है, कि 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, अब 3 मिनट हो गया, अब 4 मिनट हो गया, वो आधा घंटा आपका वेस्ट होगा। आप लोगों को देखोगे, लोगों का मूवमेंट हो रहा है, आप मोबाइल में कुछ देखोगे, आप कहीं पे बात करोगे। ठीक है, तब आप उसको पूरा का पूरा बोल पाओगे कि मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया टीवी या मूवी देखने में, तो 1 घंटा मैंने ऐसे वेस्ट नहीं किया कि अब 5 मिनट हुए, अब 10 मिनट हुए, अब 15 मिनट हुए, अब मेरे 20 मिनट वेस्ट हो गए। मेरे 1 घंटे वेस्ट हो गए किसी से बात करने में, कोई वेब सीरीज देखने में, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखने में, या कुछ और काम करने में, तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ, तो मैंने सारे एलिमेंट को कंबाइन किया, हॉलिस्टिक तरीके से मैंने उस टाइम को वेस्ट किया। दिस इज टाइम फॉर्म। तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हॉलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं, टाइम को भी हम हॉलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं, और किसी स्पेस को भी हम हॉलिस्टिक तरीके से ही देख रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस वे दीज आर द पीपल हु एक्चुअली इंस्पायर मैक्स वर्थिमर एंड अदर पीपल, और फिर उन्होंने अपने अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए। ठीक है, तो अभी माइंड में बस इतना रखिएगा कि अभी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक्चुअली में आई नहीं है, ये हमारे क्या है, एंटीसीडेंट फोर्सेस हैं। तो हर एक फोर्स, हर एक स्कूल में पहले कुछ लोग होते हैं ना, फिर वो इंस्पायर करते हैं, तो इन्होंने इंस्पायर किया, और फिर यहां से हमारा जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी निकल के आता है, और फिर वो आते से ही 2 लोगों को ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, 2 लोगों के अगेंस्ट में बात करता है। द फर्स्ट वन इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज अगेंस्ट द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म बोलता था एलिमेंटलिज्म के बारे में। ठीक है, कि ब्रेक इट डाउन एवरीथिंग इनटू एलिमेंट। ठीक है, अब आप एक बात याद रखिएगा, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी वो क्या बोलते थे कि कॉन्शियसनेस को अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप उसको एलिमेंट में ब्रेक मत कीजिए, आप उसको हॉलिस्टिक तरीके से पढ़िए। ठीक है, डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंटलिज्म एज गिवन बाय द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, बल्कि रीड इट इन अ हॉलिस्टिक मैनर। तो इसका मतलब क्या हुआ, दे वर एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका जो आपने बताया वो सही नहीं है, इसको हमें हॉलिस्टिक तरीके से पढ़ना है। ठीक है, दे वर आल्सो अगेंस्ट द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, क्योंकि बिहेवियरिज्म फोकस करते थे ओनली एस एंड आर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एक स्टिमुलस होगा, एक रिस्पॉन्स हो गया, काम खत्म। स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन्होंने कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट रिजेक्ट कर दिया था। गेस्टाल्ट वाले बोलते थे कि बिहेवियरिज्म के साथ में ये दिक्कत है कि कॉन्शियसनेस को भी आपको समझना पड़ेगा। तो गेस्टाल्ट वाले बोलते थे कि अगर आपको समझना है किसी को, तो आपको कॉन्शियसनेस भी इन्वॉल्व करना है, आपको उसको बिहेवियर भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन पढ़ने का तरीका ये नहीं होगा। तो इस पे क्यों डिसएग्री करते थे, क्योंकि ये एलिमेंट की बात करता था। इस पे एग्री करते थे क्योंकि बिहेवियरिज्म वाला कॉन्शियसनेस की बात नहीं करता था, और ये बोलते थे कि कॉन्शियसनेस को पढ़ना भी जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप कॉन्शियसनेस को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, कॉन्शियसनेस भी देखना है, रिस्पॉन्स भी देखना है, स्टिमुलस भी देखना है। ठीक है, तभी आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी कर पाओगे। ओके, सो दैट इज व्हाई दे वर अगेंस्ट द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, दे वर अगेंस्ट द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो इन दोनों को अगेंस्ट, इन दोनों को अपोज करते हुए फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हमारी इमर्ज होती है। ठीक है, और वो कहती है कि हम स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल था उसके अगेंस्ट में है, होल इज डिफरेंट और ग्रेटर देन सम इज पार्ट। फिर यहां से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर कुछ लोग इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स निकल के आते हैं। दीज देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेम। द फर्स्ट वन इज मैक्स वर्थिमर, it is very famous. The second one is Wolfgang Kohler, another very famous individual, and the third one is Kurt Kofka. Okay, Kurt Kofka along with Kohler has given concept related to learning, memory, thinking. They have also integrated these concept in the field of child psychology. बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, वहां पर भी इन कंसेप्ट को बताया गया। मैक्स वर्थिमर ने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया जो अभी हम पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये 3 इंडिविजुअल निकल के आएंगे और ये 3 इंडिविजुअल अपनी अपनी कुछ बातें करेंगे। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली जो पहले आया वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द फर्स्ट इंडिविजुअल इन दिस फील्ड इज मैक्स वर्थिमर। सबसे पहले कौन से हैं? मैक्स वर्थिमर। अब मैक्स वर्थिमर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दिया विच इज वेरी वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज पाई फिनोमेना। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? पाई फिनोमेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि एक्सपेरिमेंट क्या था। ओके, तो मैक्स वर्थिमर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे विथ हिज सब्जेक्ट। उनके सब्जेक्ट कौन कौन थे? ये उनके सब्जेक्ट थे, ये इनके स्टूडेंट थे दोनों, मैक्स वर्थिमर के। तो यही सब्जेक्ट थे, कुर्ट कोफका की वाइफ भी थी। तो ऐसे 3-4 उन्होंने सब्जेक्ट इकट्ठे किए। अब पाई फिनोमेना उन्होंने जब डिस्कवर किया तो इन्होंने क्या किया? देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज टेकिस्टोस्कोप। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेकिस्टोस्कोप व्हाट हैपेंस दैट यू गिव एन इमेज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टेकिस्टोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां से आप इमेज डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। करेंगे फिर हटा देंगे, करेंगे फिर हटा देंगे। ओके, तो उसको काफी इस्तेमाल किया जाता है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो इन्होंने विद द हेल्प ऑफ दिस टेकिस्टोस्कोप 2 वर्टिकल लाइन स्क्रीन पर शेयर करी। ठीक है, एक वर्टिकल, 2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओके। नाउ अब इन्होंने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन दिखाई, फिर दूसरी वर्टिकल लाइन दिखाई। पहले ये दिखाई लेफ्ट हैंड साइड वाली, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शो द वर्टिकल लाइन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर 1 second right hand side. Okay, so Kohler and Kofka, they were observing that there are 2 vertical lines. अलग अलग वर्टिकल लाइन है, एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, एक हमारी राइट हैंड साइड में है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल क्या था? 1 सेकंड था। तो वो परसीव कर पा रहे थे कि एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। इसके बाद क्या किया इन्होंने? उस टाइम को कम करना शुरू कर दिया। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट ही हैज डन, ही हैज डिक्रीज्ड द टाइम। ओके, नाउ द 1 second, that 1 second has decreased further, 1/15 second, 1/30th second। जब उन्होंने टाइम को कम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने क्या देखा कि कोफका और कोहलर को ये 2 वर्टिकल लाइन अलग अलग नहीं दिख रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि एक ही लाइन यहां से होकर यहां पे मूव हो रही है। ओके, वाई? क्योंकि जो टाइम इंटरवल था जहां से हम उसको लाइन को पहुंचा रहे थे वो उन्होंने बहुत कम कर दिया था। ठीक है, तो उनको इन दोनों का एपरेंट मूवमेंट कैसा लग रहा था कि एक लाइन यहां पर है, वही लाइन यहां पे आ गई है तुरंत। ओके, सो ये एपरेंट मूवमेंट उनको हो रहा था। ओके, दिस इज नोन एज पाई फिनोमेना, है ना। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मूवी देखते हैं। ठीक है, मूवी जब आप देखते हैं कोई भी, तो जब मूवी हम देखते हैं तो मूवी हमें ऐसा लगता है ना कंटिन्यूअस फ्लो है, 3 घंटे हम स्पेंड कर देते हैं वहां पर कि लगातार एक स्टोरी चल रही है। ओके, कंटिन्यूअस एक स्टोरी चल रही है। लेकिन क्या वो स्टोरी 3 घंटे में बनाई गई है? नहीं, वो तो 30 दिन या 60 दिन में बनाई गई है। तो वहां पर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी एक सीन है, एक फादर अपने बेटे से बात कर रहा है, तो वो एक सीन के तो बहुत सारे शॉट लिए गए हैं, उसके बाद वो सीन को आपको बताया गया है। ओके, लेकिन हमें वो एक सीन क्यों लग रहा है? क्योंकि जो अलग अलग शॉट थे उनको हमने बहुत कम 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 टाइम इंटरवल में एक साथ कर दिया, उनको हमने साथ में बैठा दिया। ओके, तो हमें वो एक सीन कंप्लीट लग रहा है। ओके, हमें उसका एपरेंट मूवमेंट क्या लग रहा है कि वो एक कंप्लीट है। इसी तरीके से इन्होंने अपना पाई फिनोमेना बताया था कि जब हम टाइम इंटरवल कम कर देते हैं ओके इनके बीच में, तो हमें ऐसा एपरेंट मूवमेंट होता है कि ये लाइन एक ही है, ये लाइन अलग अलग है ही नहीं। एपरेंट मूवमेंट क्या हो गया कि हमें ऐसा फील हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाई फिनोमेना। और यहीं से ही हमारा पार्ट होल साइकोलॉजी जो मेन कंसेप्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का, वो निकल के आता है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। लेट अस सी सम डायग्राम आल्सो रिलेटेड टू दिस। जैसे देखिए ये ओके, परसीव्ड मोशन, जैसे आप देख रहे होंगे, शायद आपको लगे ऐसा, अगर आप इसको परसीव कर पाए कि ये सब मूव हो रहे हैं। ठीक है, दे ऑल आर मूविंग, दीज सर्कल्स ऑल आर मूविंग। बट अगर आप इसको जूम करें, ओके ठीक है, जैसे जूम आप अभी करें, इसको मैं कर नहीं पा रहा हूं जूम, लेकिन अगर आप इसको जूम करेंगे अपनी स्क्रीन पर तो आपको क्या लगेगा कि एक पॉइंट है, ये 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 एक पॉइंट है। लेकिन हमने इन्हें इतना पास पास बैठाला हुआ है कि परसीव ऐसा हो रहा है कि दीज ऑल आर मूविंग विथ ईच अदर, ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं। ओके, इन द सेम वे इफ यू कैन सी ओवर हियर आल्सो, अगर आप इधर भी देखें तो हमने इनको इतना पास पास कर रखा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि दे आर मूविंग। ओके, फोकस कंप्लीटली ऑन वन सिंगल एलिमेंट। अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो एक ये है,
एक ही है, एक ही है, लेकिन इतना हमने करीब कर दिया है कि हमें वो ऐसा लग रहा है कि दे आर मूविंग विद ईच अदर। ओके, तो मूवी में भी ऐसा होता है, काफी जगह आप देखोगे प्रोजेक्टिव मूवी जो होती है वहां पर यही किया जाता है। ओके, सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ पाई फिनोमेना, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप फिर से बताइएगा। ओके, तो पाई फिना इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन, व्हाट इल्यूजन है ना ये, इल्यूजन मतलब क्या हो गया जो एक्चुअली में नहीं हो रहा है। और यही इसी कंसेप्ट का तो आप देखेंगे काफी मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, काफी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इस इल्यूजन के बारे में सेंसेशन में हम काफी सारे एग्जांपल देखेंगे, तो वहां पर आपको और क्लियर होगा, लेकिन अभी हमको सिर्फ कंसेप्ट समझना है क्योंकि इनके कंसेप्ट ज्यादा है। ओके, सो इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ सीइंग अ सीरीज ऑफ स्टिल ऑब्जेक्ट एज मूविंग। ठीक है, कि जो स्टिल ऑब्जेक्ट है हमने उनके बीच का टाइम इतना कम कर दिया, टाइम इलेप्स इतना कम कर दिया कि हमें वो स्टिल ऑब्जेक्ट मूविंग की तरह दिख रहे हैं। ओके, एग्जांपल, क्रिएटिंग बाय फ्लैशिंग अ वर्टिकल लाइट दैट इज फॉलोड बाय 50 or 60 मिलीसेकंड, ओके, प्रोड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट। ओके, ये क्या करता है, अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट दिखाता है। द लाइट अपीयर्स टू मूव फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाई फिनोमेना। ओके, ये हमारा पाई फिनोमेना का कंसेप्ट होता है, और इसी कंसेप्ट से शुरुआत होती है मेजरली गेस्टाइल साइकोलॉजी की, जो हमारा मैक्स वर्थीमन ने दिया था। नाउ अदर टू इंपॉर्टेंट पर्सन इज वोल्फगैंग कोहलर एंड कुर्ट कोफका। ठीक है, तो कोहलर ने क्या बोला था, कोहलर ने यही कंसेप्ट को लर्निंग में लगा दिया था। अब इन्होंने क्या बोला कि जो हम जब किसी चीज को लर्न करते हैं, तो आप ऐसा सोचना कि जब आप कोई चीज सीख लेते हो ना, तो आपके माइंड में एक हॉलिस्टिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ओके, आपको जब लर्निंग कब होती है, पहली बात तो आपने देखा होगा, कभी आप पूरा पॉलिटी पढ़ लो, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएससी पढ़ना, ओके, और फिर उन दोनों की सिमिलरिटीज, कॉन्ट्रडिक्शन ये पढ़ना, जजमेंट पढ़ना, तो आपके माइंड में लगेगा कि हाँ कि यार मजा आ गया। ठीक है, कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आ गई उस कंसेप्ट को लेकर। ओके, एक अलग से ही परसेप्चुअल फील्ड क्रिएट हो गई, एक परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन हो गया आपकी मेमोरी का। ठीक है ना, तो यही हमारा लर्निंग होता है। ओके, तो लर्निंग क्या होती है, हम अलग अलग इवेंट को, अलग अलग कंसेप्ट को जब हम पूरा का पूरा परसीव करते हैं एक तरीके से, दैट इज व्हाट लर्निंग इज। ओके, तो जब हम इस तरह की लर्निंग हमारे पास होती है, तो हमारे माइंड के अंदर एक इंसाइट क्रिएट होता है कि हाँ यार, कि हमने कुछ नया, कुछ मजा आ गया, आहा एक्सपीरियंस आ गया। ओके, दिस इज व्हाट लर्निंग, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज व्हाट कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। इसको हम इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो लर्निंग सिर्फ ऐसे नहीं होगी कि एक, जैसे बिहेवियरिज्म वालों ने बताया था, एस और आर, सिर्फ इस पे लर्निंग नहीं होगी, ट्रायल एंड एरर पे लर्निंग नहीं होगी जैसा थॉर्नडाइक ने बताया था। ओके, लर्निंग इन्वॉल्व्स परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट। Okay, so this is inside learning, and the very famous chimpanzee experiment was conducted by Kohler, जो आप लर्निंग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पर तो हमको एलैबोरेट करना ही करना है। सेम इन्होंने लर्निंग के बारे में बताया, कोफका ने भी इसी तरीके की चीजें बताई, थिंकिंग के बारे में, मेमोरी के बारे में, और इन्होंने बताया कि कैसे चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने काफी कुछ बताया। इन्होंने बताया कि कैसे हायर मेंटल प्रोसेसेस को हमें इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, हायर मेंटल प्रोसेसेस लाइक रिप्रोडक्टिव थिंकिंग। Okay, these kind of processes, these kind of techniques should be used. Divergent thinking, ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें चाइल्ड का डेवलपमेंट करना चाहिए। ओके, तो कोफका के भी अभी आ जाएंगे कंसेप्ट, थिंकिंग और मेमोरी को लेकर इन्होंने बात की थी। ओके, इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बताया। ओके, कैसे हमें डाइवर्ज करके हमें पढ़ना चाहिए किसी चीज को, जैसे हम आपको कुछ भी बता रहे हैं तो पहले उसका हॉलिस्टिक बता दो। ठीक है, आप देखना, आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, जैसे इंडेक्स होता है ना पेज से पहले, तो इंडेक्स क्यों होता है, आपको समझ में आ जाए अंदर क्या क्या है। ठीक है, ओके, ओरिएंटेशन सेशन होते हैं किसी भी क्लास से पहले, तो क्यों होते हैं, कि सब कुछ बता दिया कि अब आपको ऐसा ऐसा पढ़ना है, आपको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे दिया, अब आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा अंदर से। ठीक है, जैसे अभी आपको समझ में आ गया गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या है, अब आपको समझ में, अब आपको पढ़ने में मजा आएगा चैप्टर्स ऑफ लर्निंग, चैप्टर्स ऑफ मेमोरी, चैप्टर्स ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, फील्ड साइकोलॉजी, ओके, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी पेपर 2 में जो है। ओके, तो ये हमारा कोफका ने बताया था। ओके, तो ये 3 इंडिविजुअल आते हैं, वर्तीमर पाई का देंगे फिनोमेना, वोल्फगैंग कोहलर इनसाइड लर्निंग देंगे, और कुर्ट कोफका चाइल्ड डेवलपमेंट देंगे। ठीक है, इसके साथ इन्होंने एक कंसेप्ट और बताया था, आइसोमॉर्फिज्म, ये अभी देखते हैं। आई थिंक इट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो दीज आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, और ये यहां से अपने अलग अलग कंसेप्ट देंगे। ठीक है, फॉर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, मैक्स वर्थीमर का पाई फिनोमेना, इनसाइड लर्निंग, और फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनके
तीनों के मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन क्या हुए। तो पहला जो पाई फिनोमेना का कंसेप्ट दिया था मैक्स वर्थीमन ने, पाई फिनोमेना में क्या बताया उन्हें कि हॉलिस्टिक तरीके से चीजों को पढ़ो। वही चीज निकल के आई ना कि डॉट 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 डॉट, ये जो है हम कैसे देख रहे हैं, हम इसको एक कंप्लीट फिगर में देख रहे हैं, ये कंप्लीट फिगर है। ओके तो हम एक फॉर्म में देख रहे हैं इसको, हम एक शेप में देख रहे हैं, हम एक हॉलिस्टिक मैनर से देख रहे हैं। तो यहां से ही उसी से ही इन्होंने बताया कि परसेप्शन को हमेशा पार्ट होल साइकोलॉजी में पढ़ना चाहिए। ठीक है, परसेप्शन को हमेशा हमें हॉलिस्टिक तरीके से समझना चाहिए, हॉलिस्टिक मैनर में समझना चाहिए। ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके तो ये चीज हमारी निकल के आती है, और ये अलग अलग कंसेप्ट देंगे जैसे पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी, फील्ड डायनामिक्स, पाई फिनोमेना, आइसोमोर्फिज्म, ये हमने देख लिया पाई फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखें हम परसेप्शन में इन्होंने पार्ट ऑफ साइकोलॉजी बताया कि हमें हॉलिस्टिक तरीके से चीजों को देखना है। तो इन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बताया कि कैसे हम चीजों को हॉलिस्टिक तरीके से पढ़ते हैं। वो होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं सेंसेशन में। जैसे कि कुछ हम डिस्कस करें, जैसे एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रेगनास, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ओके ठीक है, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जहां पर हम हॉलिस्टिक तरीके से चीजों को देखते हैं। ठीक है ना। ओके जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं, पार्ट ऑफ साइकोलॉजी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। तो आपने देखा होगा जब आपके सामने मान लीजिए कुछ रेड बॉल्स पड़ी हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स पड़ी हैं, तो आपकी टेंडेंसी होगी कि आप रेड बॉल को इकट्ठा करोगे, रेड बॉल को अलग से उठा दोगे, ग्रीन बॉल को अलग कर दोगे, ब्लैक बॉल को अलग कर दोगे। ठीक है, दिस इज योर टेंडेंसी। तो आपने सिमिलर चीजों की अलग ग्रुपिंग कर दी। ठीक है ना। ओके इन द सेम वे जब आपने देखा होगा कि कुछ भीड़ में जब लोग पास पास में खड़े होते हैं तो आप ऐसा परसीव करते हो कि वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। ओके वो एक शेप में खड़े हुए हैं। ओके ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है ना। तो दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो हमारे पार्ट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इन द सेम वे इन्होंने कंसेप्ट दिया ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी का। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होता है कि इसके अंदर भी जैसे मान लीजिए एक होता है हमारा डिस्टेंस कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी। ओके कि ऑब्जेक्ट की कॉन्स्टेंसी बनी रहती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रेंड है, नाउ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 feet. Okay, now the same friend is like leaving the room and now he is at a distance of 15 feet. Okay, अब जब वो 5 feet पर खड़ा हुआ था तो आपको वो उसका जो डिस्टेंस था या आप देखेंगे उसकी जो हाइट थी आपको बड़ी लग रही थी। अब जब 15 feet पे लग गया अब उसकी इमेज आपको छोटी दिखेगी क्योंकि पहले वो पास में था तो उसकी रेटिकल इमेज जो थी बड़ी आ रही थी। अब वो पीछे चला गया, अब उसकी रेटिनल इमेज छोटी हो गई, शॉर्टन हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसकी हाइट कम हो गई है, तो वो उतना ही 5 feet का या 6 feet का। ओके तो ये क्या हो गई ये हमारी साइज कॉन्स्टेंसी हो जाती है। ओके इसी तरीके से हमारी ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी होती है। जैसे कि मान लीजिए एक सफेद शर्ट है, व्हाइट शर्ट है, अब एक व्हाइट शर्ट को आप जब सनलाइट में जाओगे तो वो ज्यादा चमकेगी, लेकिन अगर आप डिम लाइट में जाओगे तो वो कम चमकेगी। इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसका कलर चेंज हो गया, उसकी ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी है, उसका कलर व्हाइट ही है। ओके सेम कोल जो होता है उसकी ब्राइटनेस चेंज होती रहती है लेकिन है तो वो कांस्टेंट थी। ओके दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंसी, ये हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंसी होता है। और देखते हैं जैसे एक कोई गेट होता है, गेट को जब आप ओपन करते हो गेट का साइज क्या परसीव करते हो आप, रेक्टेंगुलर, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उसका साइज कुछ और हो जाता है। ओके गेट तो रेक्टेंगुलर साइज में ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट कांस्टेंसी होते हैं। इन द सेम वे फील्ड डायनामिक्स, अब इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको लेकर अलग से एक लेक्चर आएगा फील्ड डायनामिक्स को लेकर। फील्ड डायनामिक्स से ही रिलेटेड एक कंप्लीट सब ब्रांच बनती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, जिसको हम बोलते हैं फील्ड साइकोलॉजी, जिसको पेपर 2 में ही पढ़ा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, अगर आपने पढ़ा होगा कर्ट लोइन के बारे में तो इन्होंने फील्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया था। एक और नेम है टोलमैन, वो भी इसमें ही आते हैं, ब्रून्सविक वो भी इसी में ही आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने फील्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया था, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर में। ठीक है ना, पाई फिनोमेना हमने समझ लिया। एक कंसेप्ट और होता है आइसोमॉर्फिज्म का। ठीक है, अब आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये क्या बोलता है कि दैट इज डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट यू आर परसीविंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन।
ठीक है, हम जो परसीव करते हैं और हमारे जो ब्रेन उसको परसीव करने के बाद हमारे जो ब्रेन में होता है उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी इमोशन परसीव कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप व्हाट यू आर परसीविंग एंड ब्रेन एक्टिविटी, एक रिलेशनशिप। तो मान लीजिए आपने कोई परसीव किया इमोशन, लेट्स से यू आर हैप्पी और सैड, सो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा आपकी ब्रेन की एक्टिविटी से। आपके ब्रेन में भी कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे अगर आप खुश होंगे या हैप्पी होंगे। ठीक है, आपका कोई ना कोई सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ब्रेन एक्टिविटी और आपका परसीविंग रिलेशनशिप में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये क्या बोलेंगे कि दोनों काम करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, माइंड भी इंपॉर्टेंट है और बॉडी भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड, वहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, आप क्या परसीव कर रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपने ये कोई सेंटेंस पढ़ा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, आपने इस सेंटेंस को परसीव किया तो आपका ब्रेन भी तो एक्टिवेट हुआ होगा ना। आपका माइंड, हमें वो फील नहीं होता लेकिन माइंड भी तो वहां पे एक्टिवेट हो रहा है, वो माइंड आपका हेल्प कर रहा है ये स्ट्रक्चर समझने में, ये वर्ड्स को समझने में, इसको प्रोनाउंस करने में। ओके, तो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन व्हाट वी आर परसीविंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन अवर ब्रेन। ठीक है, जैसे आप समझो एक मैप होता है, ठीक है, एक मैप के थ्रू सब कुछ पता चल जाता है कि उस देश में क्या क्या है। ठीक है, जैसे इंडिया का मैप है, ओके, इंडिया का मैप तो इतने पेज का है ना, लेकिन आप उस मैप के थ्रू बता सकते हैं कि एमपी कहां पर है, यूपी कहां पर है, कहां का क्या हम क्या क्या देख रहे हैं। तो ऐसा हमारा परसीविंग का तो एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन सब कुछ ब्रेन के थ्रू भी हो रहा है। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके, तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट हो गए, पार्ट ऑफ साइकोलॉजी हो गया, ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी हो गया, फील्ड डायनेमिक्स हो गया, पाई फिनोमेना हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। इन द सेम वे लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी के बारे में भी इन्होंने बोला था। लर्निंग मैंने आपको बता ही दिया, इनसाइट लर्निंग का जो कंसेप्ट था वो दिया था कोहलर ने, चिंपांजी वाला एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या बोलते थे कि लर्निंग कब होती है, जब एक आपका एक परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दे वर अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ एसआर, ट्रायल एंड एरर के, मतलब जो ट्रायल, हम ट्रायल और एरर से लर्निंग नहीं सीखते जो थॉर्नडाइक ने बताया था। ठीक है ना, हमारे अंदर एक परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इनसाइट, एक अहा मूवमेंट होता है। सेम गोस विद द थिंकिंग आल्सो। ठीक है, थिंकिंग में भी हम रिप्रोडक्टिव थिंकिंग हमको करनी चाहिए और यही हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। मेमोरी के बारे में भी इन्होंने यही बोला। ठीक है, ओके, मेमोरी के बारे में क्या बोलते थे, जैसे इन्होंने ये बताया कि देखो पहले क्या समझा जाता था उस वक्त पर, अब तो खैर मेमोरी के अंदर भी काफी ज्यादा रिसर्च हो गई है। तो पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, उसको बोलते हैं ट्रेस थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी आप कोई चीज याद करते हो तो आपके माइंड के अंदर एक ट्रेस आ जाता है। ओके, मेमोराइज करने की कोशिश करो, वो ट्रेस छप जाता है। अब वापस से आपको याद करना है तो अगर वो ट्रेस वहां पर है तो आपको वो चीज याद रहेगी, अगर वो ट्रेस चला गया तो आप उस चीज को भूल जाओगे। तो ऐसा बोलते थे। गेस्टाल्ट वालों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या बोल दिया कि हम किसी भी चीज को मेमोराइज करते हैं तो हम उसको पूरी तरीके से करते हैं, वही हॉलिस्टिक मैनर से। ओके, सो मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे माइंड के अंदर मेमोरी अरेंज हो रही है। ओके, सिर्फ एक ट्रेस नहीं आ रहा है, वो ट्रेस एक ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि हॉलिस्टिक तरीके से ट्रेस हमारे माइंड में छपेंगे और फिर हम उनको यूज करेंगे जब भी हमें किसी चीज को रिकॉल करना होगा। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट हमारे होते हैं लर्निंग, थिंकिंग और मेमोरी को लेकर, जो हम इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। लर्निंग का लर्निंग में आएगा, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, मेमोरी चैप्टर तो हम पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी।